Hello friends, a very warm welcome to Ansarkari, and in General Studies paper 2 we will be taking up 6 question set with the goal of understanding that what more micro elements and ideas we can put into our answers with our own learnings, and how our answer is very natural to the mark and also moving in the direction where it can help us in the actual examination. Again, I would suggest and say that like the way we have written these answers in examination like conditions, they are natural and they will be helping to assess and evaluate so that maximum benefit can be taken up when the real examination is there. With this idea, let's start. How is Finance Commission of India constituted? Very simple, direct question. Once we have read for prelims, once we have done it for mains, so we can generally write it that how it is constituted, we just have to write directly. What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? So whenever Finance Commission is constituted, because every 5 years it is happening, then only such question comes up, but then for revision, it's a very good question. Constituted every 5 years under Article 280 of the Indian Constitution to fulfill the obligations of fiscal federalism. 16th Finance Commission is the latest to be constituted by the President of India. Its reference period is 2026 to 2031. Financially under the chairmanship of Arvind Panagaria. However, the recommendations are pending. Okay, the terms of reference, TOR. Vertical devolution between center and states and horizontal devolution amongst different states. Terms of reference are designed to be shorter than the previous Finance Commission, offering greater operational freedom. Choice of census data has been left to the Finance Commission again to make suitable and appropriate choices. Discretionary review of GST impact and performance incentives are left open-ended. Therefore, the flexibility in the terms of reference are intended to achieve increasing returns to welfare of the citizens under complex challenges. I think well written, clear ideas, simple language, and whatever information required as per the question, they are there. Because the terms of reference of the 16th Finance Commission, they have not been, in public domain. And like you have said about vertical and horizontal devolution, so whatever had in the past, on that basis, we have to, like, whenever it is coming in the examination also, so examination can also ask you कि you suggest, ऐसा भी हो सकता है. So जो ऑलरेडी हुआ है उसको आप फिर यहाँ लेके आ सकते हो, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से बोल सकते हो कि ऐसा है, इसके रिजल्ट्स ऐसे आए हैं, पॉपुलेशन है, और उसके बाद बाकी जो क्राइटेरियाज हैं जिन पे डिबेट है, जिन क्राइटेरियाज पे, वो क्राइटेरिया हमें लिखने चाहिए, बाकी सब ठीक है. Now again, thought-provoking questions. Multiplicity of various commissions for the vulnerable section of society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of functions. तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? Vulnerable section of society. Is it better to merge all commissions into an umbrella human rights commission? Argue your case. आप क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो, या आप जो ऑलरेडी है उसमें आप कुछ सुधार बताइए. सुधार ही बताना पड़ेगा, कोई इसका और तरीका नहीं है. आपको हेड ऑन ऐसा क्वेश्चन लिखना चाहिए. So multiplicity of commission reflects the need and necessity to suit diversity of Indian society and delivers precision-based governance for the upliftment of vulnerable sections as enshrined in the Schedule 5 and 6. I think very good and a powerful start. Merge of the present commission is no guarantee of increase in working efficiency, result in better welfare of vulnerable section as stated by such a committee. However, the present structure is more suitable as specialization-based services are accepted and resolved. तो आप बताइए कैसे नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब या नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट ने फाइनेंस दिया, या उन्होंने कोई ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स दिए. आप ऐसा लिख सकते हो, देखो उसका रेशियो इतना है, या SC ST में अवेयरनेस फैलाया कि वो उनके राइट्स क्या हैं, उससे जो है लिटरेसी रेशियो में 50% इजाफा हो गया है. अगर हम 2 डिकेड्स की बात करें, वो गर्ल चाइल्ड को दे आर मोर इन हॉस्टल एंड ऑल्सो वोकेशनल ट्रेनिंग में 35% से ज़्यादा 35% से ज़्यादा जो है सुधार हुआ था. ऐसा आपको बोल के आर्ग्यू करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, तो उसके अलावा जो है आपका नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज भी आ सकता है यहाँ पर, अगर एक बात की जाए तो. आप सबको बताओगे कैसे नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब ने जो है ट्राइफेड की मदद से हैंडीक्राफ्ट और ट्राइबल गुड्स को कैसे ऑनलाइन पहुंचा दिया. उससे उनकी इनकम में एक सर्वे के अनुसार, झारखंड में एक सर्वे के अनुसार पर कैपिटा इनकम में आप कह सकते हो कि 20% इजाफा हुआ है. तो वो रॉन्ग नहीं होगा. शहद हो गया, बैम्बू हो गया, महुआ हो गया, है, उसके बाद ब्लैक जो आयरन होता है उसका काम हो गया, कुछ भी लिख दो यार, तो वो आपको करना पड़ेगा.
क्योंकि ये आपने बना लिया, ये तो आपने ढांचा बना दिया, आपने सारा ढांचा बता दिया ये ढांचा है, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है। पार्लियामेंट चर्चा करती है ना इसकी, ठीक है, तो आप पार्लियामेंट को भी ला सकते हो, आप कहो कि पार्लियामेंट में उनके वेलफेयर के लिए आवाज उठाई जाती है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसी कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है, बात खत्म। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, उसके बाद सिविल सोसाइटी का सर्वे लिख दो, एक एक लाइन में लिखना है ये अलग अलग जगह, तो आपका नैरो जो नैरेटिव है वो भी टूट जाएगा, नैरेटिव और बढ़िया हो जाएगा। डिफरेंट नेचर कंसर्न्स ऑफ वनरेबल सेक्शन लाइक पीवीटीजी एंड ओबीसी नीड डिफरेंट कमीशन। अब क्या यहाँ से रिपीट होने लग जाता है, यहाँ से आप जबरदस्ती पॉइंट ढूंढने लग जाते हो दूसरे पॉइंट के बाद, क्योंकि आपने ऊपर समझ में आ चुका है। पॉइंट नंबर 2 अगर पढ़ते हैं तो हमें लगता है ऊपर जब आपने बोल दिया कि सबकी नीड और वो अलग अलग होती है, तो 2 नंबर पॉइंट रिपीट हो गया एक तरीके से, वो वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहा है। द साइज ऑफ वनरेबल सेक्शन इज लार्ज ऑल्दो डिक्लाइनिंग विद प्रोग्रेसिव मेजर। ये स्टेटमेंट उतना भारी और पावरफुल नहीं है जैसा क्वेश्चन पूछ रहा था, ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, साइज से क्या फर्क पड़ना है। और तो आप आर्ग्यू करो कि हाउ टू मेक इट मोर इफेक्टिव, हाउ टू मेक इट मोर जस्टिस कैसे हो, जिस जस्टिस की वो बात कर रहा है उसको आर्ग्यू करो बार बार। ऑल्सो इफ मर्जर इज डन देन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज कैन इंक्लूड डायल्यूशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ, नहीं नहीं नहीं, आपने जो ऊपर स्टैंड लिया है, अब आपने स्टैंड लिया था कि एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि नीड अलग है, डाइवर्सिटी है, और उसके बाद जो है हैंडल नहीं हो पाएगा, तो फिर आप यहाँ पे डायल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी का कोई स्कोप नहीं आता, आइडेंटिटी तो नहीं बन जाएगी, न्यू नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आर्ग्यूमेंट हमारे पहले वाली आर्ग्यूमेंट को ओवरलैप कर रहा है, तो आपको उसी में चलना चाहिए था। यहाँ मेहनत ज्यादा हुई, समझे आप, मेहनत ज्यादा हुई, और आपको उसी डायरेक्शन में बोलना था कि भाई वन साइज फिट ऑल अप्रोच दैट इज नॉट सुटेबल गिवन स्केल। अब फिर वही बात हो गया है, तो मतलब आंसर फिर अब नया नहीं दे पा रहा है, वर्ड्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट दे आर नॉट ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्टिविटी, देयरफॉर फॉलोइंग रिफॉर्म्स कैन इंस्टीड इंक्रीज। आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मेकिंग देम क्वासी जुडिशियल इन नेचर, गुड पॉइंट, पावर टू इनजस्टिस एंड परसिक्यूशन विल गिव मोर टीथ। अब आपने सबसे बड़ी बात, गवर्नेंस का पेपर, आप कहते उन्हीं की फंक्शनिंग को, उन्हीं की वर्क कल्चर को, उन्हीं के स्ट्रक्चर को, उसको बस ठीक कर दो यार, उसमें कोई कमी नहीं है। जो लोगों के राइट्स हैं, सिटीजन चार्टर है, जो व्हाट आई कैन से जो ग्रांट्स हैं, उसको बस ठीक से यूज कर लो। पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, वहां तक पेनिट्रेट कर दो उनको, वहां तक जो है ग्रास रूट लेवल तक की अप्रोच दे दो, तो ये सारी बातें लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यानी हमने ज्यादा एफर्ट लगाया, हमने एफर्ट ज्यादा लगा दिया, और रिवार्ड कम मिलेगा। How far do you agree with the view that the focus on lack of availability of food as the main cause of hunger takes the attention from ineffective human development policies in India? तो फिर अब ये देखो, अब ये सरकार खुद को थप्पड़ मार रही है, यूपीएससी जो है सरकार को थप्पड़ मारवा रहा है, तो आपको सावधान होना है कि नहीं 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 नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज इंडिया में इनफेक्टिव नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज इंडिया में अपना जो पूरा पोटेंशियल है वो तो नहीं लेके आ पाई है, लेकिन इनफेक्टिव नहीं है, तो वो बोल ही रहा है खुद ही। हाउ फार डू यू एग्री? तो भाई मैं एग्री नहीं करता कि ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज इंडिया में इनफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है दैट इज इंट्रिकेटली लिंक्ड विद ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा हुआ तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी थोड़ा हुआ। और फिर साथ में लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, especially along with the liberalization, that has not been the case. After that, it is about the distribution, it is about going beyond food, it is about the basic dignity and basic need, it is about the constitution ने जो enlarge किया आर्टिकल 21 को, राइट टू लाइफ को जैसे हम करते गए, वो है। हंगर एक, अमृता सेन उन्होंने कहा है, हंगर एक विशियस साइकिल का पार्ट है, सीजनल, स्ट्रेस, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो उनका एक चक्र आप लेके आ जाओ, और बस जहां आपको लगे मैंने सारे सारे पॉइंट बता दिए, बढ़िया है, उसके बाद एक कंक्लूड कर दो, बस हो गया। अब देखते हैं हमने क्या किया। पॉलिसीज डिवाइस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस इन मल्टी डायरेक्शन कवरिंग बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड 360 डिग्री ह्यूमर, बिल्कुल ठीक बात है। चलो,
द चैलेंज अराइजेस इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द, बिल्कुल सही बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज बेसिक नेसेसिटी एंड द साइज ऑफ पॉवर्टी इज ऑलमोस्ट 50%, बिल्कुल ठीक बात है। रिमूवल ऑफ हंगर इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज एज सीन थ्रू पीडीएस, एनएफएसए एंड ग्रेजुअल फोकस ऑफ पीएम किसान, ठीक बात है। रिडक्शन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, hunger happens simultaneously with increase in per capita income and fall in child mortality, school drop rates, ठीक है। It cannot be reasonably accepted that there is interdependency between the two factors. The reason for ineffective human development can be 80% size of informal living makes tracing of challenge. Very, very good point, I think. Wonderful point. The belief that more children means more hands to work by poor led to child labor practices and illiteracy and obviously consequent burden. हमारे ऊपर burden जो बढ़ता है, आप burden लेके आओ ना। Lack of definition what constitutes human development to suit। अब ये देखो, ये जो आपने बोला लैक ऑफ डेवलपमेंट, इससे क्या मतलब, बात आपकी सही है लेकिन ये लाने की जरूरत ही नहीं थी। आप बस उसी पे आर्ग्यू करते, ये बोल के हमने एक नया मुद्दा खोल दिया। हमने सरकार को ही बोल दिया कि तू अलग अलग इतने सारे काम कर रहा है लेकिन ये तो है नहीं, हमें क्या जरूरत है उंगली करने की। आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात शुरू कर दी और उसी में आर्ग्यू कर, उसी को आगे लेके आओ। रादर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हैव इंश्योर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इन फॉलोइंग वे: 90% primary education enrollment due to midday meal scheme, health is wealth, nutritional security, addressing hunger. Therefore, as well, it is stated that India enjoyed demographic dividend advantage only when basic necessities of food were assured to the citizens. I think 75% से 80% हमने इस आंसर को एड्रेस भी कर लिया, स्ट्रक्चर भी ठीक बने, लेकिन ये दो तीन चीजें जो बीच में अटक रही हैं उससे जो है लीवरेज थोड़ा सा कम हो गया। क्योंकि क्वेश्चन जो बोलता है कि ऐसा तो नहीं है, हाउ फार डू यू एग्री, तो आपने बीच बीच में बोला है, आपने कॉन्फिडेंस स्टैंड लिया है कि आई डोंट एग्री विद दिस। तो वही बात है, जब वो बोल रहा है हाउ फार डू यू एग्री, तो उसके बाद तो बताओ, पहले बताओ कि भाई फूड प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों चीजें साथ चले, जैसा आपने शुरू में बोला। आपने उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात की, वो भी सब आ गया। उसके बाद ये, लेकिन जो आपने बोला इट कैन नॉट बी रीजनेबली एक्सेप्टेड दैट देयर इज इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन, तो ये नहीं, ये गलत है। आपने दोनों इंटरडिपेंडेंसी तो है, दोनों में इंटरडिपेंडेंसी है। आपने ये क्यों बोला कि दे कैन नॉट बी देयर, इट कैन नॉट बी रीजनेबली, देयर इज अ इंटरडिपेंडेंसी, जो फैमिली थोड़ी सी, हाँ इंटरडिपेंडेंसी गलत वर्ड हो गया, वो जो क्वेश्चन ने बोला मैंने उसको शॉर्ट में इंटरप्रेट करने की कोशिश करी, पर वो हाँ कोई बात नहीं। इंटरडिपेंडेंसी तो तो है। आपने द रीजन फॉर इनफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज कैन बी, तो ये भी सही है, लेकिन इसको और थोड़ा सटल लिखते आप कि द रीजन फॉर स्लो, द रीजन फॉर स्लो ह्यूमन डेवलपमेंट, द रीजन फॉर स्लो इम्प्लीमेंटेशन, या द रीजन फॉर नॉट शोइंग नॉट शोइंग गुड रिजल्ट्स बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। आप मत डायरेक्ट लिखो इनफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब हमने तो बिल्कुल बोल दिया कि इनफेक्टिव है। बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ। क्वेश्चन भी टेस्ट ही कर रहा है। हाँ जी। क्वेश्चन तो ये भी पूछ चुका है भाई स्टूडेंट से कि कश्मीर क्या है। अब जिसने ये हम्म, लिख दिया कश्मीर डिस्प्यूट है, उसको 0 मिलेगा। हाँ। भारत के लिए कश्मीर डिस्प्यूट नहीं है बात। हाँ, खत्म। तो ये आपने जब लिख दिया, उसने तो बोल दिया, अपने आप को थप्पड़ मारा है उसने तो जानबूझ के। तो आपको हम्म थोड़ा सा सटल कि रीजन फॉर नॉट ब्रिंगिंग ऑसम रिजल्ट बाय ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज, बाकी सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं ये, जी। बाकी पॉइंट तो अच्छे हैं, लेकिन इस पॉइंट में भी जो डेफिनेशन नहीं लिखना चाहिए था आपको कि डेफिनेशन नहीं है। अरे डेफिनेशन जब नहीं है वो ठीक है, लेकिन जो हो रहा है उसमें आप बताओ कि कैसे करप्ट, मतलब मोरल करप्शन है, उसके बाद पब्लिक लीकेज है, उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी का रोल है, तो बहुत सारी चीजें है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी तो रोल है इसमें। हम्म अब आप जब बात बात पे यही कहते रहोगे कि मैं आपको 5 किलो चावल दूंगा, मैं आपको 5 किलो चावल दूंगा, तो आदमी यार उसके ऊपर कैसे उठेगा? हम्म बस पेट ही तो भरेगा, बीमारियां कैसे दूर होंगी? हाँ बात समझो ना। तो जी। अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, गुड आपने आर्ग्यूमेंट्स किए, लेकिन जो आप ऑन द स्पॉट अभी कर सकते थे, वो उसमें कुछ एलिमेंट्स अभी हम लेके आ सकते हैं जो नहीं है। हम्म What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of trade war, keeping in mind India's interest? तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया। तो ये अब ये देखो, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म द WTO are crucial to uphold the principles of free fair trade in multilateral world with the change in the face of globalization 21st century. Okay, to maintain and increase relevance for WTO, for India की बात कर रहा है ये, the following reforms are needed: reforming the Doha agenda to include impact of climate change on food security and recognize supportive role of agriculture subsidies as claimed by India, ठीक बात। address weaponization of trade war through its dispute settlement mechanism, इस पे थोड़ा सा जैसे आपने लिखा भी, as India states dialogue and diplomacy is the only way to resolve, इसको थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते थे हल्का सा, most favored nation status,
Also include the non-tariff barriers like sanitary and phytosanitary measures, promotion of green trade practices, expanding the agenda to free and fair green trade, framework for trade agreements as seen in relationship to bilateral FTAs on similar lines. Therefore, as believed by Gandhiji, an eye for an eye will make the whole world blind, fits into the trade war tactics as can be addressed by only WTO. तो ये अच्छा लिखा आपने, इसके अंदर दो लेयर हम कह सकते हैं कि भाई जो हमें मतलब दो लेयर जो लेके आनी थी इंडिया की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने उसके ब्रॉड उसमें ले आए। और डब्ल्यूटीओ में जैसे आप हमने एक बार ट्रिप्स पे आंसर लिखा था, वो आपके एक दो पॉइंट लेके आ सकते थे, इंडिया क्या सोचता है, ट्रिप्स है, ट्रिम्स है, जो डब्ल्यूटीओ के जो अलग अलग यू नो वो जो एरियाज हैं उसके भी अगर हम एक एक पॉइंट ले आते तो हमारा एक और लेयर जो है पैदा हो जाती, क्योंकि हम जी। डेवलपिंग कंट्रीज का आप सारा सारा ले आए हो, नॉन टैरिफ बैरियर की आपने बात कर दी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म पे थोड़ा सा और लिख सकते थे हम कि हल्का सा एक दो लाइन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स भी आपने बोल दिए, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की बात आपने कर दी, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड आप लेके आते कि टैकलिंग नॉन मार्केट इकोनॉमी डिस्टॉर्शंस, जी। यही कि भाई लेबर ऐसा है और मतलब जो है ये चाइना करता है। अब चाइना जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड सारी चीज कर देता है, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। चाइना डंप मार रहा है, इधर उधर डंपिंग मार रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है ना। और हाँ। उसके बाद हमारे जब हम माल भेजना चाहते हैं यूरोप, तो वो बोलता है भाई तुम्हारे चाइल्ड ने बनाई है। तो स्पेशल हम्म। एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए उसको थोड़ा सा हम एक दो लाइन और लिख सकते थे। तो वही बात है कि जैसे एक इंडिया ने एक और चीज की थी, 30 for 30 प्लान, 30 साल हो हाँ जी। जाएंगे ना। हम्म। 30 for 30 जो है प्लान, यानी कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, TPRM, वो ठीक से हो जाए। तो बस ये दो, बाकी आपने 90% सारे पॉइंट लिख ही दिए। तो मतलब वही है कि बस अब थोड़ा सा हमें सिलेबस के हिसाब से कीवर्ड्स को देखा और थर्ड लेयर या सेकंड लेयर के दो चार चार कीवर्ड लिख लिए, बस हो गया, बाकी सब तो जी। रेडी। हम्म। इन व्हाट वेज द ऑनगोइंग इजराइल ईरान अटैक्स अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसको हमने यही कहा था कि भाई इसको इजराइल ईरान की जगह आप यूएस भी लगा लो। तो हम देखते हैं अब हमने क्या लिखा। The recent Israel attack showcases the rising geopolitical tension in the form of proxy wars taking the form of, बहुत अच्छा लिखा, शुरू में समझा दिया। शुरुआत हमेशा सिंपल रखो, शुरुआत हमेशा डिक्शनरी की तरह वर्ड को समझाओ पहले, हम्म। कभी मत आगे जंप करो। तो ये हमने सही कर रहे हैं। इट पोजेस थ्रेट टू द लाइफ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग इंडियन डायस्पोरा, इट्स द ट्रेड फ्लो कॉजिंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एंड रेजेस क्वेश्चन अबाउट इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। ठीक बोला आपने, लेकिन अब एक बहुत बड़ा वर्ड जैसे आप यहाँ घुसा सकते थे, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, एक वर्ड आ जाता। मतलब जी। आपने डायस्पोरा, उसके बाद डायस्पोरा तो सेकंड आएगा, सबसे पहले तो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी है। भाई हम्म। ईरान मिडल ईस्ट में सब कुछ हिलेगा तो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी हिलेगा, इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी हिलेगा तो इंडिया का कॉस्ट बढ़ेगा। हम्म। फिर डिफेंस विफेंस ये सब ला सकते हो आप। तो एज ए रिजल्ट इंडिया टेकन फ्यू स्टेप्स, इमीडिएट विड्रॉल ऑफ इंडियंस एंड नेशनल्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज अंडर ऑपरेशन सिंधु, डिसबर्सल ऑफ ह्यूमन एड इन द फॉर्म ऑफ फूड बॉक्सेस एंड फर्स्ट एड बॉक्सेस। और साथ में आप बोलो इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में, इंडिया ने थर्ड फोरम के ऊपर, सब जगह इंडिया ने बोला, इंडिया हर जगह पीस और डिप्लोमेटिक डायलॉग की बात कर रहा है। ये जरूर जी। लिखो। हम्म। India is a key trade partner given the significance of Chabar port to expand trade to Europe and Afghanistan bypassing Pakistan. बिल्कुल सही बात है। World 60% crude oil, India's 40% natural gas passing through Persian Gulf. Need to fasten up green capacity addition to generate alternatives. The success and smooth functioning of IMEEC corridor is dependent upon security and stability under Strait of Hormuz. Therefore, crude oil over dependence, a reduction sustainability is linked to protecting Indian national interest and crucial environment. बिल्कुल ठीक है। बहुत मैं ब्रॉड नहीं कहूंगा लेकिन बहुत नैरो भी नहीं है, क्योंकि जो इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है वो आपने एक पर्सपेक्टिव से तो सारा बता दिया, लेकिन मान लो ये जो मिडिल ईस्ट वाला है ये नहीं होता है, तो उससे क्या है, जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड है आप वो भी ला सकते थे कि पूरा वर्ल्ड ट्रेड है जो उसके ऊपर जो रिपरकशंस आते हैं उससे इनडायरेक्टली इंडिया पे रिपरकशंस आता है, डिमांड जो है स्लो हो जाती है। तो इंडिया हमेशा मानता है कि देयर मस्ट बी पीसफुल एंड देयर मस्ट बी, वो जो हमने एक लाइन बोली बस वो लिख सकते हो। बाकी तो इसराइल का भी जैसे अब है, ईरान का तो आप ले आए, इसराइल का भी ले आते कि कैसे इसराइल के साथ हमारे जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कमिटमेंट है डिफेंस वाले, जैसे रशिया हमारी मदद नहीं कर पा रहा, अगर जी। इसराइल भी लॉन्ग टर्म अगर वॉर में फंस जाएगा तो जो उसके हम्म। कमिटमेंट 2025 के हैं वो 26 में 28 में पूरे होंगे, जो 2028 के हैं 32 में पूरे होंगे। यानी हमारे जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं इसराइल के साथ, स्पेशली इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि वो हमारा लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इन वन वेज, वो हमारे हम्म। धीरे हो जाएंगे।
और इससे हमारा जो इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो चाहे वो फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का हो, चाहे फिर वो स्टार्टअप्स का हो, चाहे फिर वो क्रिएशन मैरी टाइम, हम पावर की बात कर रहे हैं अपने आप को, सब जगह इम्पैक्ट आएगा। जी। तो दो चार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप दो हम्म। तीन पॉइंट ले आओ, तो उससे क्या होगा, वो लेवल बस वही लेवल आना रह गया है। तो उससे क्या है, हम एक सुटेबल पोजीशन पे आ सकते हैं। उसके बाद फिर हम रिलैक्स होकर सोच सकते हैं कि हमने कहाँ फेंका, हमारा तीर कहाँ तक गया, फिर उसके हम्म। हिसाब से हम अगली स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगली जी। स्ट्रेटेजी हमेशा बनती है जब पहली स्ट्रेटेजी उस समय हम्म। पे पूरी हो जाए। जी। डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, और रादर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ चेक एंड बैलेंस? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, मतलब उन्होंने ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लिया कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है हमारे यहाँ पे, चेक्स एंड बैलेंसेज है। थोड़ा सा हम्म। आप हमारे घर में घुस सकते हैं, थोड़ा सा हम आपके घर में घुस सकते हैं, लेकिन वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी के साथ है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड, नहीं नहीं दोनों आपने साथ लिख दिए। अच्छा, अच्छा आपने ये बोला प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये पूछ रहा है डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रादर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि दिखता है सेपरेशन ऑफ पावर, पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर पे हमारा प्रिंसिपल बैलेंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उस पे इट इज नॉट बेस्ड, इट इज बेस्ड रादर देन ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस। सर लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस तो है, मैंने आगे लिखे हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट कोई बात सेपरेशन नहीं, ऑफ लेकिन पावर। आपने वो आप फिर वो बोल सकते हो कि वो प्रिंसिपल नहीं है, वो एक्सेप्शन है, जब आप खुद ही एक्सेप्शन वर्ड यूज कर रहे हो। हम्म। तो प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस इज देयर, बट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट देयर। कोई बात नहीं, हाँ। होता है, लेकिन क्योंकि हमने प्रेशर में या हम काम करते हैं तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आई नो यू डोंट मीन दैट, लेट मी सी द आंसर। वर्क इन ए कॉम्प्लीमेंट्री मैनर इन इंडियन डेमोक्रेसी नॉट इन आइसोलेशन दैट वर्ड्स फ्लूडिटी, देखो खुद ही ले आया, फ्लूडिटी इन गुड गवर्नेंस फ्रेमवर्क एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, बात आपने कह दी। तो पहला लाइन अपने आप कट हो गई। इट इज बिकॉज इंडिया हैज फॉलो द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म थ्रू वर्किंग ऑफ थ्री ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव, ठीक बात है, चलो आगे, चलो चलो चलो। ऑल दो सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट स्ट्रिक्ट, ये लो खुद ही कर रहे हो आप, पहली लाइन छोड़ के बाकी सारा ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म व्हेन इन एब्सेंस ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट हैज लेड टू द बैन ऑन क्रैकर्स गिवन अर्जेंसी ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये भी छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट, ये तो मतलब आपने दिया अच्छा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके अलावा क्या नहीं कर रहा है, आप ये सोचो। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भाई कि अगर एक मंत्री सोफिया कुरैशी मैम के लिए बोलता है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई एसआईटी बनाओ, एफआईआर करो, वो तो काम एग्जीक्यूटिव का था ना, जी। पुलिस का काम था और उनका, लेकिन वो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैं इसको मॉनिटर करूंगा। सुप्रीम हम्म। कोर्ट जो है, स्ट्रे डॉग्स अगर स्ट्रे डॉग्स अगर दिल्ली और पूरे भारत में लोगों को काटते हैं और जिनका कुछ होना चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है चलो भाई इसको पीआईएल के थ्रू डालो, और फिर हम जी। देखेंगे क्या होना चाहिए। काम तो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत का था, स्टेट हम्म। गवर्नमेंट का काम था ये। सुप्रीम कोर्ट जो है ईपीएफओ की बात उठाता है कि कैसे सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उनको। सुप्रीम कोर्ट इरेडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी इशारा करता है, और वो हॉस्पिटल्स को इशारा करता है कि तुम पॉलिसी होल्डर्स को मत चूसो। ये सारे के सारे पॉलिसी डिसीजंस एग्जीक्यूटिव के हैं। जी। तो इसमें से एक दो एग्जांपल हमने दे दिया, एक दो आप सेंटर का दे दो, मतलब एक दो पार्लियामेंट का, एक पार्लियामेंट का दे दिया, एक जुडिशरी का दे दिया, एक उसका दे हम्म। दिया, हो गया। तो स्ट्रिक्ट बैलेंस नहीं है, फ्लूइडिटी है, बिल्कुल सही कहा। जैसे पार्लियामेंट है, कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी डिस्कस कर सकती है, कुछ भी, जी। वहां उसके फ्लोर पे सब बात होती है। अब जैसे जज हटाने की बात है तो करेगी पार्लियामेंट, करेगी, है ना चेक, हम्म। सुप्रीम मतलब जुडिशरी पे चेक आ गया, उसका हम्म। मैकेनिज्म दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ जजेस का है। अगर वो हम्म। सारे मिलके लोकसभा के जितना जो प्रस्ताव लाना है दोनों हाउस ले आए हैं, तो हम्म। किसी भी जज को हटा सकते हैं वो। हाँ जी, हाँ सर। कौन कौन रोक पाएगा उसको, बताओ आप मुझे, हैं? जी। नहीं, कोई नहीं रोकता सर। महाअभियोग लगाना है तो रोक पाएंगे? नहीं। तो ये वाली बात है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल द प्रेसिडेंट कैन पार्लियामेंट कैन मेक, तो ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल नहीं, आप बताओ कि प्रेसिडेंट रूल जैसे मणिपुर है, प्रेसिडेंट रूल जैसे अब
मतलब मणिपुर का एग्जांपल ले लो, एकदम प्रैक्टिकल ठोक दो वहीं। जी। इट इज स्ट्रिक्ट। अब ये एक्स्ट्रा हो गया। इट इज स्ट्रिक्ट व्हेन एनजेएसी लेड टू एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन इन जुडिशियल अकॉर्डिंग, नहीं तो एनजेएसी तो मतलब लेके गए वहां तक, तो वो अपने डोमेन में ही काम किया उन्होंने। हाँ तो सर जुडिशरी वो कैन इसमें तो सर वो ही हो रहा था ना, लेकिन चेक एंड इंटरवेंशन बैलेंस। एग्जीक्यूटिव का हो रहा हाँ था तो तो। चेक एंड बैलेंस आपने बोला, स्ट्रिक्ट कुछ नहीं। स्ट्रिक्ट का मतलब नहीं है ना, एनजेएसी सुप्रीम कोर्ट अगर उसको बनने ही नहीं देता पार्लियामेंट में, तब आप बोलते। हम्म। बनाया है ना पार्लियामेंट ने, जो कर सकती थी पार्लियामेंट ने हाँ। किया, और कानून बना के दे भी दिया। जैसे हम्म। आप इसकी जगह एग्जांपल दो, जैसे अब उसका इलेक्शन कमीशन का, उसका अपॉइंटमेंट का, जी। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि एक सीजीआई भी होना चाहिए, हम्म। लेकिन पार्लियामेंट ने उसको हटा दिया और अपने हिसाब से बना के अपॉइंटमेंट भी कर दी। और बोलो। जी। हम्म। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात बिल्कुल सब सही है, स्ट्रिक्ट हट जाएगा दोनों जगह से, बस बात खत्म। ठीक है सर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में अगर वित्त आयोग की बात की जाए, प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाएगा। उसके बाद संसद मध्य वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो ठीक है, अब जो ऊपर हमने पॉइंट्स बोले वो आप यहाँ और भी लेके आ सकते हैं। समाज के कमजोर वर्ग आयोग, बहुलता, दोहरेपन, विलय अधिकार आयोग, वही वाला जो था डीपीए, वो जो मतलब एससी एसटी वाला जो, और बाकी माइनॉरिटी कमीशन की बात करें। आयोगों का निर्माण वर्गों के आधार पर होता है, एससी एसटी, एनसी एसटी, एनसीएससी, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली, राज्य सरकार और नौकरशाही की जवाबदेही, पॉइंट बहुत अच्छा है। पारदर्शिता बहुत अच्छा पॉइंट है। शिक्षा संस्थानों में भागीदारी सुनिश्चित करें, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। भूख की अगर बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द्वारा 80 करोड़ लोगों को अन्न प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। पीडीएस डीपीएसपी, मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण है पोषण, जिसका आधार है भोजन, बहुत अच्छी लाइन लिखी। प्रथम चरण खाद्य उपलब्धता है। बाल विकास और शिक्षा के लिए मिड डे मील स्कीम है। बच्चों में पोलियो तथा माताओं में एनीमिया की समस्या खत्म करनी चाहिए। कुपोषण की समस्या 2.0। उसके बाद जो है खाद्य संस्करण के माध्यम से एसएचजी, बहुत अच्छा आंसर लिखा। और फ्लो भी है। प्रौद्योगिकी और खाद्य श्रृंखला को जोड़कर भारत विश्व स्तर पर चावल का 30% आयात करता है। अच्छा, आयात करता है कि निर्यात करता है, ये देखना पड़ेगा। तो जो संविधान की मूल अवधारणा है उसको दिखाया, तो ये आंसर अच्छा लिखा आपने, इट इज अ गुड वे टू शो। डब्ल्यूटीओ में देखते हैं कुछ, अगर हमें नया पॉइंट मिल सकता है तो, विवाद निपटान प्रणाली, यूएसए द्वारा लागू रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण, फालतू बात है। कृषि उत्पादकों पर सब्सिडी के कारण हो। अरे डब्ल्यूटीओ में क्या सुधार चाहिए, विवाद निपटान, पॉइंट नंबर, ये नीचे वाला पॉइंट अच्छा है। आईपी जैसे कानूनों का प्रसार, पर्यावरण संबंधित, तो आपने जनरल कोशिश की, अच्छा लिखा, लेकिन और अच्छा लिखा जा सकता है। चलिए आगे चलिए। और ये था संविधान की शक्तियों में, अगर तीनों की बात की जाए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को संघीय और एकात्मक दोनों रूपों में वर्णित किया। एक, इस कारण भारतीय संविधान नियंत्रण एवं सुल्तानत के आधार पर कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। शक्तियों का पृथक्करण क्षेत्रीय स्वतंत्रता और कार्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, आपने डीपीएसपी की बात कर दी। संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छा लिखा। कानून बनाना, लागू करना, जांच और हितों की रक्षा करना, ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा। अनुसूची 7, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संरचनात्मक विकास, संघ में वित्तीय भागीदारी, भूमि अधिग्रहण, तो आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया, लैंड एक्विजिशन बता दिया आपने, उसके बाद जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ऊपर हम कोशिश कर रहे थे उसी डायरेक्शन में इन पॉइंट्स को लेके आना चाहिए। सो व्हाट डू यू से मानसी? तो मतलब मेरे को डायरेक्टली हार्श वर्ड ऐसे यूज नहीं करना है। सो वो नहीं होना चाहिए। नहीं कोई बात और नहीं, आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप खुद कैसे फील करते हो उसको पढ़ के, खुद आप अप्रोप्रिएटली फील करो ना। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा ट्रूथ नहीं लिखनी है, पर हाँ। आप अपना जजमेंट लेके आ सकते हो। इनफेक्टिव ह्यूमन पॉलिसीज बोल रहा है, हम्म। समझे? तो आप कहो कि इन कहो, लिख दो, इनफेक्टिव बट स्टिल बेस्ट हम्म। हैड बीन ट्राइड अपॉन इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। थोड़ा जी। हल्का सा हाँ। स्टैंड लो। जैसे अब तुम, ये वही वाली बात है कि भाई अगर एक बार में भारत विकसित नहीं हुआ तो क्या भारत बर्बाद हो गया? नहीं। एक बार में हम अगर टॉप रैंक नहीं लेके आते हैं तो क्या हम जीरो हो गए? ये वो वाला एटीट्यूड है। हम्म। आप अपने जी। आप को माफ नहीं करोगे क्या? अपने आप को मतलब बिल्कुल जीरो कर दोगे कि भाई नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, सब जीरो है? थोड़ा ना होता है। हम्म। तो आप खुद को जीरो नहीं बोल रहे हो, भारत को जीरो बोल रहे हो। जी। हाँ सर, तो थोड़ा इसका सा मतलब है ना, ध्यान थोड़ा रखिए। सा लेना पड़ेगा। झारखंड है तो राज्य। जी। उड़ीसा है, बैकवर्ड है, हम नहीं गए हैं। अरे भाई वहां भी लोग रहते हैं, वहां भी बड़े बड़े हम्म। ब्रिज हैं, वहां भी जनता रहती है, वहां भी देश चल रहा है। जी।
है, वो भी अपना पूरा समाज है। जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा मतलब इतनी बड़ी महान है। तमिलनाडु है, आप तमिलनाडु जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मजा है, मतलब अलग ही कंट्री जैसा लगता है, लेकिन भारत इतना गजब है। हम्म। तो ये तो एग्जामिनर आपके माइंडसेट को चेक कर रहा है। जी सर। एग्जामिनर मतलब आप हमेशा, जैसे आप एग्जामिनर मान लो ये बोलता है कि सिविल सर्विस से करप्ट कुछ नहीं है, हम्म। मान लिया कुछ नहीं है उससे करप्ट, लेकिन किया भी उसी ने अब तक। हाँ। तो पसीना उसको गिराओ एक सेकंड उसको गाली देने से पहले। जी। मतलब मेरा ये मानना है कि अपने आप को नकारा बताना आसान है। हम्म। कुछ किया है उस पर विश्वास रखिए, तो देश ने भी कुछ किया है। वो पॉलिटिकल जी। पार्टी का काम है कि नेहरू ने कुछ नहीं किया, हाँ। लेकिन मोदी जी बाहर जाके नहीं बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं। हम्म। वरना जो प्रोग्राम मान लीजिए कोई 20 साल पहले शुरू हुआ था, मोदी जी उसको इनोग्रेट कर रहे हैं, वही ना होते तो आज कैसे होता। तो आप हाँ। कॉन्टेक्स्ट समझिए। जी सर। पीएमओ तो पहले भी था, हम्म। पार्लियामेंट पहले भी थी ना, बिल्डिंग नहीं बनी है, काम। नई संसद की बिल्डिंग बनी है ना। है? अब हम्म। जैसे मोदी जी को मानना, सर को मानना पड़ेगा उनको, जैसे वो बोल रहे हैं कि राजेंद्र चोल ने जो है विश्व विजय किया एक तरीके से, सोना नहीं लाए कुछ नहीं लाए, गंगा जल लाए। हम्म। अब ये तो फील करने वाली बात है ही। अब उन्होंने हाँ। बैलेट उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन की बात कर दी, बताओ, उन्होंने बोल दिया मैग्ना कार्टा से पहले का है। अब ये तो यही तो इनोवेटिव है। हाँ। मैग्ना कार्टा से पहले था, हम खुद बोल रहे हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल्स में यहाँ पे बैले वो था, डिस्कशन थे, डिबेट थे। हम्म। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं। आप अपने आप को ये बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब कि हमने रिलैक्स होकर पास लाने की कोशिश नहीं की। हो सकता है हम थोड़ा सा आगे पीछे हल्का सा रह सकते हैं, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है ना कि आप उसको महसूस करके आगे नहीं जा रहे हैं। तो खुद पर विश्वास, हाँ जी। खुद पर संयम और विश्वास, और खुद को लगातार काम करने का तरीका। हम्म। और कौन आदमी कितना जो है, वही बात है कि मौका पाके, जैसे वो आम आदमी होता है काम करने वाला, कि बॉस नहीं देख रहा है, थोड़ा मूवी देख ले, थोड़ा सुट्टा मार ले, तो वो कैसे है, तो वो डिसाइड करता है। तो रिलैक्स होके, हाँ। तो यू कैन शेयर वन और टू मोर पॉइंट व्हाटएवर यू वांट टू से। सर यही है मेजर लर्निंग तो, मतलब कैसे आंसर को मोल्ड करना है, उसी के बीच में एक दो क्लियर स्टैंड निकल के आना चाहिए, तो वो स्मूथ होना चाहिए। स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्मूथ होके आना हम्म। चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। हाँ जी। मतलब वट एवर यू आर सेइंग, हम्म। लेट मी रेज द बार। जी। Whatever you are saying, whatever you are writing, even if it is shown to you, say after 10 years, हम्म। then also it must make sense. हाँ जी। Such are the kind of questions. यूपीएससी का एक क्वेश्चन बता दीजिए 1979 से लेकर 2025 तक जो हम्म। इररेलेवेंट है, हाँ नहीं है। तो बस फिर आपका आंसर भी नहीं होना चाहिए। समझे? तो हाँ जी सर। आप बताइए। सर प्रैक्टिकल पॉइंट्स के साथ जो थिंकिंग है सर वो भी लेकर आनी है, और जो पर्सनैलिटीज के नाम के साथ इंट्रोडक्शन है सर उसके कर सकते हैं सर। और कैसे आएगी, आएगा कैसे वो, सेंटर लेके आएगा उसको, आंसर सेंटर क्लॉज? नहीं तो फिर सर लानी है, लानी कौन लाएगा? सर है? जाएंगे सर, आंसर लिखते टाइम लिख। लाहा, जी सर। लाना है उसको। हाँ जी। So, thank you very much for this interactive and insightful discussion and ideas. And hope this helps you to being more smart, and again sitting on your table every time, and you are reducing time in writing and thinking, so that you become the best version of yourself, thereby getting success. Thank you very much for working, joining different programs, and also getting success with Ansarkari. Thank you very much.